بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام پر گیس بم گرا دیا گیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 12 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ گھریلو سلنڈر 139 روپے مہنگا ہو کر 2548 کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 535 روپے کا اضافہ ہوا۔ نئی قیمت 9804 روپے مقرر۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں اضافے پر رکشہ ڈرائیورز اور عوام حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں اب کرائے بڑھنے کے ساتھ غریب کی جیب پر بوجھ مزید بڑھے گا۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی تو مہنگائی سے پریشان عوام کا صبر بھی جواب دے گیا اور حکومت پر طنز کے تیر برسا دیے۔ شہری کہتے ہیں آٹا دالیں تو مہنگی تھیں، اب پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کے لیے بھی جیب پر بوجھ پڑے گا۔ بھائی جان ہر چیز مہنگا ہے، کیا چیز مہنگا نہیں ہے؟ سبزی مہنگا ہے، آلو مہنگا ہے، پیاز مہنگا ہے، کرایہ مہنگا ہے، ہر چیز مہنگا ہے، کوئی گزارا نہیں ہو رہا ہے کسی کا۔ اب یہاں سے ہم سول جاتے ہیں، رکشے والا بولتا ہے 100 روپے دے دو، اب یہ 50 روپے کا بھی سفر نہیں ہے۔ اب مہنگائی کے لیے کیا کریں، ہم کس سے بولیں؟ گورنمنٹ سن نہیں رہی ہے۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ پیٹرول پہلے ہی مہنگا تھا، اب ایل پی جی میں اضافے سے وہ کرایہ بڑھانے پر مجبور ہوں گے جس سے غریب آدمی پر بوجھ پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے، پہلے پیٹرول پہ گاڑی تھی، ہم نے ایل پی جی تھوڑی سستی تھی، ایل پی جی لگا لی تھی، چلو گزارا بسر ہو رہا تھا۔ اب لازمی ہے تو 12 روپے ایل پی جی پہ بڑھ گئے ہیں آج۔ اب انہوں نے رات کو اعلان ہو جاتا ہے تو صبح ہی بڑھ جاتے ہیں پیسے۔ اب جب لازمی ہمیں مہنگی ملے گی، ہم بھی کرایہ مہنگا کریں گے تو غریب عوام تو پیسے کی کون بیٹھے گا، کون، اور پریشان لوگ ہو جائیں گے۔ اوگرا کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق دسمبر کے لیے ایل پی جی 11 روپے 79 پیسے فی کلو مہنگی ہو کر 215 روپے 95 کی ہو گئی ہے۔ کیمرامین اجمل شاہ کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی میں آرٹس کونسل آف پاکستان کی جانب سے 15ویں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ کانفرنس میں نامور ملکی اور غیر ملکی ادیب، دانشور اور اسکالر شریک ہیں۔ کانفرنس کا افتتاح وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کیا۔ کہیں مادری، کہیں دفتری تو کہیں سرکاری، سب سے دلکش زبان اردو ہماری۔ کراچی کے آرٹس کونسل میں اردو کے چاہنے والوں کا عالمی اجتماع شروع ہو گیا۔ 15ویں عالمی اردو کانفرنس میں اردو ادب کے ساتھ ساتھ خطے کی تمام زبانوں پر سیشن جاری ہیں۔ اور یہ جو ہنگامہ دیگر تھا، یہی سارا اقبال ہے، یہی قوم کے لیے اہم ہمیشہ سے رہا ہے، رہے گا۔ افتتاحی سیشن کے سٹیج کو تمام زبانوں کی خوشبوؤں سے گل و گلزار کیا گیا، جس کے مہمان خاص وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تھے۔ اس کے علاوہ وزیر ثقافت سردار شاہ، صدر آرٹس کونسل احمد شاہ، برطانوی مصنفہ ایلیس بیلم، انور مقصود، زہرا نگاہ، ناصر عباس اور دیگر نے خطاب کیا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ شاید ہمارا شہر ایسے خوشگوار مناظر بھی ہم کو دکھا سکتا ہے، ورنہ ہم تو معلوم نہیں روز کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا کیا سنتے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ آرٹس کونسل ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز بن چکا ہے۔ ہمارے صوبے سے ہمیشہ امن کا پیغام گیا ہے، ہمارے صوبے سے ہمیشہ بھائی چارے کا پیغام گیا ہے۔ اس خطے کے لوگ ہی ایسے ہیں، ہم چاہے جتنا بھی، آج کل ہم بات کی تھی، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بدتمیزی کر سکیں، اس لیے کہ ایک ماحول بدتمیزی کا برپا ہوا ہے، جتنی کوشش کر لیں ہم سے بدتمیزی نہیں ہوتی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے دیگر شہروں میں بھی عالمی کانفرنسوں کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ 13، 14، 15 جنوری کو ہم پاکستان لٹریچر فیسٹیول گوادر میں کرنے جا رہے ہیں، گوادر سے شروع کریں گے۔ لاہور میں 10، 11، 12 فروری کو، اور لوریوں کو میں نے بتا دیا ہے، ہم پاکستان لٹریچر فیسٹیول کرنا ہے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ وزیر ثقافت سردار شاہ نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کو اعزاز حاصل ہے، سب سے پہلے وزارت ثقافت ذوالفقار علی بھٹو قائم کی تھی۔ ہم یہاں پہ آرٹس کاؤنسل کا ایک سندھ میں نیٹ ورک بنانے جا رہے ہیں، جس میں شاہ صاحب، امن شاہ صاحب اس کو لیڈ لے رہے ہیں۔ سکھر آرٹس کاؤنسل، لاڑکانہ آرٹس کاؤنسل، حیدرآباد آرٹس کاؤنسل، میرپور خاص آرٹس کاؤنسل، کراچی آرٹس کاؤنسل، جہاں پہ بات آپ کی ہوگی، جہاں پہ بات ہماری ہوگی۔ کانفرنس کے پہلے دن 3 سیشن ہوئے۔ پہلے سیشن میں اقبال اور قوم، دوسرے سیشن کا موضوع اردو ادب کا شاہکار ادب تھا، جس میں ضیاء محی الدین نے اپنی خوبصورت آواز میں رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو کے موضوع پر گفتگو کی۔ ایک خاتون نے، جن سے میرا تعارف نہیں تھا، اچانک مجھے آتے آگے سے روکا اور بولی،
सर ये आप सनराइज से घंटों पहले सन ग्लासेस लगा के क्यों आते हैं? मैं हक्का बक्का रह गया, कोई जवाब बनना पड़ा। 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे फिर रोका, वही सवाल दोहराया, मगर अब की बार सर नहीं कहा। आप सनराइज से पहले डार्क ग्लासेस क्यों लगा के आते हैं? अब की बार मेरा हयाऊ ज़रा खुल गया था। मैं डार्क ग्लासेस उतार कर जवाब दिया, जो आप समझ रही हैं वो ठीक है। जबकि तीसरे सेशन कव्वाली में अयाज फरीद और अबू मोहम्मद ने कलाम पेश किया। 4 रोजा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंधी, सराइकी, बलोची, पश्तो, पंजाबी और दीगर जबानों के सेशन भी होंगे। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मारूफ सन्नतकार SM मुनीर के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुल्क भर की समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात का काटी के सरबराह के घर पर तांता बन गया। SM मुनीर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के लिए अल-हमरा सोसाइटी, उनकी रिहाइशगाह पर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की आमद का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने SM मुनीर के घर सोगवारान से ताज़ियत की। कामरान टिसोरी का कहना था कि SM मुनीर का इंतकाल से 2 रोज़ कबल फ़ोन आया और मुझे कहा तुम मेरे बेटे हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा मरहूम SM मुनीर की रिहाइशगाह पर सोगवारान से ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल के हमरा SM मुनीर के वर्सा से ताज़ियत की। एहसन इकबाल का कहना था कि मरहूम SM मुनीर एक फ़र्द नहीं बल्कि अपनी शख्सियत में एक इंस्टीट्यूट थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान के बिज़नेस के लिए वक्फ़ की। इस मौके पर SM बिरादरान, SM नसीर, SM जावेद, SM परवेज़, SM तारिक और परवेज़ इनाम, अमानुल्लाह उस्मान मंजूर भी मौजूद थे। SM मुनीर के तीनों साहबजादे SM तनवीर, SM इमरान और SM इरफान और मारूफ बिजनेसमैन शख्सियात भी मौजूद थीं। कैमरामैन इरफान तरमेजी के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। मलीर हॉट में लगाई गई पटरी हादसात का सबब बनने लगी। आए दिन हादसात से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। की पटरी लोगों की जानें लेने लगी। मलीर हॉल्ट पर बनने वाली पटरी के टूटने के बाइस हर दिन 2 से 3 हादसात पेश आते हैं। सड़क पर बनाई गई पटरी के एतराफ में कोई फाटक भी मौजूद नहीं। ऐसी सूरत हाल को देखते हुए रिहायशियों ने गाड़ी चलाना ही छोड़ दी है। आपके सामने है, ये क्या हाल हुआ है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये सारी तबाही मची हुई है। लोगों के जो है ना एक्सीडेंट होते हैं, इधर काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं एक्सीडेंट। कई सालों से ये ऐसी ही हालत में मौजूद है, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुक्काम आते ज़रूर हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। तो मैं तकरीबन जो है 14-15 साल से देख रहा हूँ यही हालत कि पटरी के अलावा रोडों की हालत देख लें। वो लोग जो यहाँ के रिहायशी नहीं हैं वो बेचारे एक नॉर्मल तरीके से गुजरना चाहते हैं मगर बाइक स्लिप हो जाती है। यहाँ ये तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, ये रोड ने खुदाई करा हुआ, देखो दिखा सकते हो अगर कैमरा मैन तो। ये बोले कि बनाएंगे, 15 दिन के बाद कोई नहीं यहाँ पे आया। आते हैं, देख के चले जाते हैं। शहरियों का कहना है कि ऐसी सूरत हाल हो गई है कि बाइक चलाना ही छोड़ दी है। जानी हादसा भी हुए हैं यहाँ से, और मैं भी कई दफ़ा गिरा हूँ यहाँ पे। अब तो कराची की हर सड़क का हाल यही है कि मैंने बाइक चलाना ही छोड़ दिया है। औरत गिरी थी, बाइक वाला गिर गया, औरत का सर लग गया, नीचे सर फट गया, वो बेचारी बहुत हो गई। ये बड़ी हमने इसकी वीडियो बना के भेजी है, ऊपर उनको कहा है कि ये रोड बनवाएं। अभी तक कोई इसका नहीं हुआ। मलीर हॉल्ट पर कायम टूटी हुई पटरी किसी भी बड़े सानिया का सबब बन सकती है। रिहायशियों का मुतालबा है कि इसे जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। कैमरामैन ज़िशान नवाब के साथ रूहा फातिमा, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में हरियाली का फ़रोग चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। मयसर वसाइल में रहते हुए शहर के पार्क तेज़ी से आबाद कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। जब टैक्स इस्लाहात के लिए काम करता हूँ, हाफिज़ नईम मेरे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के पार्क्स की रौनकें बहाल करने के लिए सरगर्म हैं। बोट बेसन क्लिफ्टन में वाजिद शमसुल हसन फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मसाइल के हल के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। जब भी वो अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं तो हाफिज़ नईम उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ये फैसला जो है पार्टी की क़यादत भी करती है और कराची की आवाम भी करेगी कि वो किसको मेयर देखना चाहते हैं, किसको डिप्टी मेयर देखना चाहते हैं, किसको चेयरमैन वाटर बोर्ड देखना चाहते हैं। ये कराची की आवाम कानूनी तरीके से इसका फैसला करेगी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उनका कहना था कि हमने शहर को संवारने की कोशिश की है। आवाम को ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जिनका विजन और मकसद शहर की बेहतरी हो। तो हाफिज़ नईम और रहमान को आजकल मुर्तज़ा वहाब फोबिया हो गया है, मैं ये समझता हूँ।
मैं तो इस तरह की जायज़ नाजायज़ वाली बात नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ सियासी तौर पर मेरी तरबियत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं इस तरह की तुर्श ज़बान का इस्तेमाल करूँ, ना मेरी सियासी तरबियत देती है और ना कराची का माहौल इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करता है। कराची के लोग तो बड़े शाइस्ता हैं। मुर्तज़ा वहाब और नजमी आलम ने पार्क के इफ्तिताह के मौके पर बास्केटबॉल भी खेली और खेल को एंजॉय किया। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के फैलने पर तिबी माहिरीन तशवीश में मुब्तला हो गए। माहिरीन का कहना है अगर मौजी मर्ज को रोका ना गया तो आधी से ज़्यादा आबादी मुतासर हो सकती है। रिपोर्ट कर रही है नमरा रियासत। हेपेटाइटिस से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का पहला नंबर आ गया। मुल्क की 1 करोड़ से जायद आबादी मौजी मर्ज में मुब्तला। मोवेनपिक होटल में पाकिस्तान सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ लिवर डिजीज के तहत 16वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जुल्फकार दारेजो, आमना सुबहान, हुमा कुरैशी, प्रोफेसर सईद हामिद, प्रोफेसर वसीम जाफरी और प्रोफेसर ज़ैगम अब्बास समेत जिगर के अमराज के माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका ने खबरदार किया कि हेपेटाइटिस पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो आधी आबादी मुतासर हो सकती है। जहाँ भी इंजेक्शन लगवाते हैं कि वहाँ नई सिरिंज यूज़ करें, बार्बर के पास जाएंगे वहाँ नया ब्लड यूज़ करवाएं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग करवाएं। तो यही ब्लड बॉन्ड है, ब्लड से ये डिजीज़ होती है, उससे जितना बचा जाए एक बैड ब्लड से तो उससे। शुरका ने वफाकी और सूबाई हुकूमत पर जोर दिया कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी के खात्मे के लिए इक़दामात को तेज करें और WHO के अहदाफ को पूरा करें। कैमरामैन ज़िशान नवाब के हमरा, नमरा रियासत, सिटी 21। मारूफ कैलीग्राफर अब्दुल रशीद कहते हैं सर्दियों में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। हुकूमत के साथ साथ निजी शोबे को भी आगे बढ़ना होगा। मोवेनपिक होटल और कैलीग्राफर अब्दुल रशीद के इश्तराक से इंडस हस्पताल को 7 लाख रुपए फंड देने की तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबे के माहिरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब में अब्दुल रशीद ने कहा कि कराची हमेशा मुसीबत ज़दगान के साथ खड़ा रहा, सैलाब मुतासरीन को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। देखिए कितना है कि हर आदमी करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी रेज्ड क्वाइट अमाउंट, तो वो हम जो कि डॉक्टर बारी के तवज्जो से सैलाब ज़दगान तक पहुँचाएँगे। मोवेनपिक होटल के जनरल मैनेजर खुर्रम अवान का कहना है कि सैलाब ज़दगान को मेडिकल सहूलत देकर अच्छी इब्तिदा की। सैलाब ज़दगान के लिए हमने कोशिश की कि पैसे इकट्ठे करें, और आज उसकी सेरेमनी थी कि हम वो अमाउंट डॉक्टर साहब के हैंड ओवर करें ताकि वो उनके लिए यूटिलाइज़ किया जाए। ऐसी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी करेंगे और मेक श्योर कि हम अपनी CSR एक्टिविटीज़ को अपनी कम्युनिटीज़ के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इंडस हस्पताल के डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में अब भी पानी खड़ा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। ये पैसा अब जो हमारे कैंप्स लग रहे हैं वो घर तक पहुंचाना है लोगों को। इलाज अब बहुत ज़रूरत है क्योंकि पानी खड़ा है, उसकी वजह से जो है ना बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ जिसमें डायरिया है, फिर मलेरिया है, डेंगू है, इन सब को ये चीज़ें वो वहाँ इस्तेमाल होंगे और इंशाल्लाह एक एक पैसा उन गरीबों को पहुँचेगा। इस मौके पर शुरका ने सैलाब ज़दगान की मदद करने पर कैलीग्राफर अब्दुल रशीद और दीगर को सराहा। उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी मुतासरीन की मदद जारी रहेगी। कैमरामैन ज़िशान नवाब के साथ हमना निसार, सिटी 21। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार किया है कि इंतखाबात वक्त पर करने के बजाय 1 साल आगे भी जा सकते हैं। जिसके पास सियासी अक्ल नहीं वो सियासत सिखा रहा है। क्लिफ्टन बैत रिजवान पर सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की इमरान खान पर तनकीद करते हुए बोले कि हर किसी को चोर चोर कहने का बयानिया फेल हो गया है। बढ़के बहुत सुनी है, असम्बलियां तोड़ने की सिर्फ बातें की जा रही हैं। हर एक को चोर चोर कहना ये बयानिया फेल हो चुका है। इस बयानिए का अगर कोई मज़हर है तो वो आप खुद हैं। आप अभी इस्तीफे दिए हैं, उसके कोई असरात हैं, निज़ाम चल रहा है इंशाअल्लाह और उनके निज़ाम को ले रहे हैं। और फिर अजीब बात है, इस्तीफे भी दिए हुए, बरात भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लॉजेस भी नहीं छोड़ रहे, बंगले भी नहीं छोड़ रहे, गाड़ी। तो अब ये क्या चीज़ है? ये है इंसाफ, ये है अमानत, ये है दियानत जिसका मुजाहरा वो कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार किया कि इंतखाबात वक्त पर करने के बजाय 1 साल आगे भी जा सकते हैं। इख्तिलाफात का सबको हक है, साजिश का किसी को हक नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त पर होंगे। बल्कि ये भी सोचा जा सकता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इंतखाबात ज़रा 1 साल आज के लिए मज़ीद मुलतवी कर दें। मुल्क का दिफाई निज़ाम भी एक वहदत की तरफ आगे बढ़ रहा है और हमें इस पर खुशी है। इख्तिलाफ राय का हक हर एक को हासिल है,
हालांकि आम तौर पर हुकूमतों में लोगों के कुछ थोड़े बड़े शिकवे ज़रूर होते हैं, कुछ फ़र्क आ जाता है, लेकिन हमें पहले से ज़्यादा पजीराई नज़र आई पब्लिक में और इंशाअल्लाह इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आईन पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाज़त किसी को नहीं दे सकते। सरबराह पीडीएम का कहना था कि इमरान खान का एजेंडा पूरा नहीं होने देंगे। इमरान खान कब तक आवाम को धोखा देते रहेंगे। कैमरामैन इरफान तरमेजी के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21।